Now in this video we are going to solve all these exercises. Okay, so first is fill in the blanks. 1 liter is equals to 1000 milliliter. So 4 liter will be equal to 1000 into 4, 4000 milliliter. Like that only 2 liters. 2 लीटर में कितने मिलीलीटर रहते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 1000. देखिए वो इन बोथ द वे यू कैन मल्टीप्लाई 2 into 1000 और 1000 into 2. वॉट एवर योर आंसर विल रिमेन द सेम. आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आपके आंसर में. आपने अगर 2 into 1000 लिखा तो भी राइट आएगा, 1000 into 2 लिखा तो भी राइट आएगा. ओके, इज इक्वल्स टू 2000 मिलीलीटर. लाइक दैट ओनली 15 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, 15 लीटर को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 15 into 1000 और 1000 into 15 जो भी वैसे अगर आपने किया होगा करे होंगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 15,000 milliliters. Now first question number 2, how many milliliters are there in 3 and 3/4 liters? अब look at the blackboard now. One more thing I want to tell you. देखो यहाँ पे पूरा full question दिया हुआ है. How many milliliters are there in 3 and 3/4 liter? आपको ऐसे ही same question like this you have to write in your notebook as it is. आपको ऐसे ही complete question लिखने का है blackboard में. See here, already it is written in the textbook. So if I'll write the same question on the blackboard, what will happen? Again and again the time will get wasted. और फिर मुझे भी blackboard पे space नहीं रहेगा to write the answer. And the question is there in front of you. There is no need to write on the blackboard. So look at the blackboard. I have written how many. मैंने सिर्फ how many लिखा और last word लिखा. ये आपको पता चलने के लिए कि ये जो solution है, जैसे हम question के लिए answer लिखते हैं वैसे ही whenever we solve the maths at that time we use the word solution. हम जो भी sums होता है उसको solve करते हैं तो उसका solution निकलता है. ओके की तो लाइक दैट ओनली जो हमको फाइंड आउट करने का है हाउ मैनी लीटर्स आर देयर इन 3 and 3/4 liters. सो लेट अस सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन देखो क्या है. 3 and 3/4 liters. ठीक है. सो 3 and 3/4 liter ऐसे होता है, उसमें होता है कंप्लीट 3 liters प्लस 3/4 liters. नाउ 3 liter in 3 liter means 3000 milliliter. 3 into 1000 3000 milliliter. लाइक दैट ओनली 3/4 लीटर. मैंने आपको चार्ट दिया था उसमें आपको मैंने बताया था 3/4 लीटर इज इक्वल्स टू 750 मिलीलीटर. सो 3000 प्लस 750 मिलीलीटर टोटल आ गया अपना 3750. सो 3 and 3/4 लीटर इज इक्वल्स टू 3750 मिलीलीटर. हैव यू अंडरस्टूड नाउ कि 3 and 3/4 लीटर इज इक्वल्स टू 3750 मिलीलीटर. Question number 3. How many milliliters are there in 1.5 liter? Okay. So look at the blackboard. 1.5 liter में कितने milliliters होते हैं that we are going to find out in this sums. 1.5 liter. 1.5 liter is equals to 1 liter plus half liter. 1 liter means 1000 ml. Half liter means 500 ml. So 1000 plus 500 is 1500 ml. So 1.5 liter is equals to 1500 milliliter, or you can say 1500 milliliter. This is our answer. Let us move on towards the fourth question. How many milliliters are there in 1.25 liter? आपको ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखने का है. I am repeating the same thing again and again. Because while checking the homework, I have seen many of the students what they do, you know, they copy the same as it is written on the blackboard. But blackboard में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है. Why? Because it is written in your textbook. So आपको जब भी आप होमवर्क कर रहे हो, जब भी आप वर्क कर रहे हो, तो keep your textbook open in front of you and you have to copy the complete question from the textbook. Understood? Everything now see you are grown up now. तो आप ये मत सोचो कि हर एक चीज मिस लिख के देंगे. मिस अगर ब्लैकबोर्ड में कंप्लीट क्वेश्चन लिखा तो ही हम लिखेंगे, ऐसा नहीं. मिस ने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट. मिस आपको क्या समझाना चाहते हैं कि सॉल्यूशन कैसे आना चाहिए. क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. सो क्वेश्चन आप वहां से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा. ओके, सो नाउ सी हियर हाउ मेनी milliliters are there in 1.25 liter. That we are going to find it out. Okay, 1.25 liter. 1.25 liter is equals to 1 liter plus quarter liter. 1 liter means 1000 milliliter plus quarter liter means 215
250 milliliters. So 1000 plus 250 is 1250 milliliter. So 1¼ liter is equals to 1250 milliliters. Okay. Now question number 5. Which measure will be used to pour 3½ liter of milk and how many times will they be used? Now we are going to see 3½ liter of milk. 3.5 लीटर अगर मिल्क दूध चाहिए हमको तो वो कौन सा मेजर यूज करेगा और कितने बार यूज करेगा? सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड. 3½ liter milk, that means 3½ in 3 लीटर प्लस ½ लीटर, उसको 3 लीटर और ½ लीटर. तो वो क्या करेगा, 1 लीटर का वो मेजर भरेगा, डालेगा, फिर से उसको कितने बार भरेगा, वो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 3 बार डालेगा. ओके. और फिर हाफ 50 ml वाला जो मेजर है वो 1 बार डालेगा. सो 3 times 1 liter measure and one time he will use 500 milliliter measure will be used. Okay. and 1 यानी 3 बार क्या यूज करेगा वो? 3 times what he will use? 1 liter. 1 लीटर का जो उसका जो मेजर होता है ना गिनने का, जो हमने देखा है 1 लीटर का जो मेजर होता है, ये देखिए यहाँ पे आई विल शो यू दिस मेजर. 1 लीटर वाला देखा आपने, ये कितने बार डालेगा वो? 3 बार. 1 लीटर और आप देख सकते हो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ राइटिंग 1 एंड लीटर. लीटर देखो कैसा दिया हुआ, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में लीटर लिखा हुआ है ताकि 1 और लीटर के बीच में आपको डिफरेंस दिख सके. हाँ. सो ये जो 1 लीटर वाला है वो 3 बार डालेगा तो कितने लीटर हो जाएंगे? 3 लीटर्स. ओके. 1 2 and 3. और ये जो 500 ml वाला दिख रहा है आपको, ये है ½ लीटर. ये ½ लीटर का जो मेजर है वो कितने बार डालेगा? 1 बार. तो कितना हो जाएगा? 3½ यस और नो? यही पूछा है ना क्वेश्चन में. यस. अगर आपने दिमाग में सब चीज रख ली, ये जो मेजर है देखो 200 वाला, ये 100 वाला, ये 50 ml वाला, तो ये अलग अलग मेजर है, जिससे कि आप जैसे आप दूध लेने जाते हो ना, तो कोई ½ लीटर मांगता है, कोई 200 ml मांगता है, ठीक है, कोई 100 ml मांगता है, कोई 50. तो ये अलग अलग इससे वो मेजर करके आपको दूध देते हैं. Now see here. Write how many times the following measure will have to be used to fill a 1 liter measure. अगर आपको 1 लीटर कंप्लीट बनाना है तो ये जो मेजर दिए हुए वो आपको कितनी बार यूज करना पड़ेगा टू मेक कंप्लीट 1 लीटर. नाउ ये देखो मेजर पहला देख रहे हैं हम, दैट इज 200 मिलीलीटर. 200 मिलीलीटर का उसको कितने बार डालना पड़ेगा कंटेनर में ताकि वो 1 लीटर पूरे हो जाए? सो द आंसर इज 5 टाइम्स, है ना. 200 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर होता है 1000. सो 1000 मतलब 1 लीटर. सो वैसे ही आपको फाइंड आउट करने का है कि अगर जो 50 है, 50 ml का अगर है तो उसको कितने बार डालना पड़ेगा आपको कंटेनर में 1 लीटर बनाने के लिए? 20 टाइम्स. कितने बार? 20 टाइम. इफ इट इज 100, अगर 100 ml है तो आपको 10 बार डालना पड़ेगा. ये भी देखो मल्टीप्लाई करके देख लेना यहाँ पे. 20 इंटू 50 इंटू 20 इज 1000 लीटर. ठीक है, 1000 मिलीलीटर. सो जो कि 1 लीटर के करीब होता है. एंड हियर 100 मिलीलीटर का आपको कितने बार डालना पड़ेगा? 10 टाइम्स. अगर आप 10 बार मेजर करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 लीटर. ओके. 1000 मिलीलीटर दैट मीन्स 1 लीटर. और 500 मिलीलीटर का है, उसको 1 लीटर कंप्लीट करने के लिए हमको सिर्फ 2 ही बार डालने पड़ेंगे. 1000 मिलीलीटर मीन्स हाफ लीटर ना. तो ½ लीटर को अगर हम 2 बार डालेंगे तो वो हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1000 मिलीलीटर मीन्स 1 लीटर. सो लाइक दिस. आपको ये चार्ट मैंने अभी उसमें ड्रॉ नहीं किया है, ये इसमें ही है, तो आप इसमें ही ऐसे आंसर लिख सकते हो, बट इन द नोटबुक यू हैव टू ड्रॉ इट. अभी लेट्स सी कि हमको क्या क्या ड्रॉ करने का है इन द नोटबुक. फर्स्ट आपको हेडिंग देने का है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का. फिर मैंने आपको बताया कि आपको वॉल्यूम एंड जो पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया है वो लिखने का है. देन आपको ½ क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर का वो पूरा लिखने का है. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस मेजर. आपको ये मेजर ड्रॉ करके रखने का है कि 1 लीटर, 50 ml, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, ये सब मेजर्स यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. आपको आपके नोटबुक में ये सारे मेजर्स ड्रॉ करने के हैं. एंड देन यू विल मूव ऑन टूवर्ड्स दिस एक्सरसाइज. और उसके बाद में आप एक्सरसाइज करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स
फिर देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी देखा है यहाँ पे. द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस, this you will complete it, and in the next video we will meet with the word problems. तो word problems करने के वक्त आपको क्या करना है, पूरा जो चार्ट है हमारा वो पूरा आपको बाय हार्ट करने का है, चाहे फिर वो किसका हो, चाहे फिर वो ग्राम्स का हो या मिली या लीटर्स का हो या फिर आपको किलोमीटर्स का हो. तो आपको ये सारे जो हाफ कितना होता है उसका, 1/4 कितना होता है, 3/4 कितना होता है, ये बाय हार्ट जो मैंने आपको करने बोला था इन ईच एंड एवरी वीडियो, दैट यू शुड कीप इन माइंड. तभी आप वर्ड प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द असाइनमेंट. मैथ्स असाइनमेंट्स आपको 2 असाइनमेंट है. वन इज व्हाट इज अ लीप ईयर. फॉर दैट आपको क्या करने का है, यू हैव टू गो टू लेसन नंबर 8. आपको लेसन नंबर 8 जो है मेजरिंग टाइम, measuring time, that lesson, measuring time, lesson number 8. पेज नंबर, उसमें जो टॉपिक है हमारा द लीप ईयर. सो व्हाट इज द लीप ईयर, ये फाइंड आउट करने के लिए यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर. ओके, इफ द नंबर डिनोटिंग अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर जो भी हमारा ईयर है वो अगर 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ओके देन दैट ईयर हैज 29 डेज इन फेब्रुवरी. तो जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं फेब्रुवरी में, करेक्ट. सो दिस ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर. सो ऐसा ईयर जिसमें कि जो फेब्रुवरी में 29, अदर यू नो दिस इज ऑल्सो द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. ये जो मंथ है ये फेब्रुवरी का मंथ है, येस और नो. सो इसमें अगर आपने कैलेंडर देखा होगा तो कैलेंडर में आपको कैलेंडर देख के ये पता चला होगा कि इन दिस ये जो है इसमें सिर्फ 28 डेज है, येस और नो. दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीप ईयर. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं फेब्रुवरी में, 29 डेज. तो वैसे ही आपको पहले फाइंड आउट करने का है आंसर कि व्हाट इज अ लीप ईयर. आइदर यू कैन राइट इट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक और फ्रॉम वॉट एवर सोर्स यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट. देन सेकेंड क्वेश्चन, आपको दूसरा क्या करने का है, आपको रेफर द कैलेंडर. आपको 2016 का कैलेंडर निकालना है, चेक करने का है कि उसमें फेब्रुवरी मंथ में जाकर देखो आप कि फेब्रुवरी मंथ में 28 डेज है या 29 डेज है. ओके, एंड ड्रॉ द पेज. आपको फेब्रुवरी, जैसे यहाँ पे देखो आपने देखा होगा ये फेब्रुवरी, ऐसे ही आपको ड्रॉ करने का है. दिस इज फेब्रुवरी 2012 है ना. फेब्रुवरी 2012 में देखो 29 डेज दिखा रहा है ना. तो दैट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर. तो ऐसे ही आपको कैलेंडर 2016 फेब्रुवरी का ड्रॉ करने का है अच्छी तरह से, नीटली, ऐसे ही कलरफुल यू हैव टू ड्रॉ इट. और फाइंड आउट करने का है आपको कि वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट. अगर उसमें 29 डेज होंगे फेब्रुवरी में तो दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर, और अगर 28 डेज होंगे तो वो लीप ईयर नहीं है. और सिंपली आप उसके ईयर को देखकर भी बता सकते हैं 2016. तो 2016 ये 4 से डिविजिबल है या नहीं. अगर वो 4 से डिविजिबल है तो दैट इज अ लीप ईयर, नहीं है सो दैट इज नॉट अ लीप ईयर. ठीक है, तो आपको ये असाइनमेंट है, दैट यू हैव टू डू इट अलॉन्ग योर वर्क. ओके, गुड बाय बेटा. Meet you in the next video. Till then, do your homework.